Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the fourth part of the solutions to NCERT questions of the surface chemistry chapter for class 12 CBSE and ISC. In this video we will discuss solutions to exercise questions 15 to 20. So let's begin. 15th question is, explain what is observed when a beam of light is passed through a colloidal sol. So, scattering of light by the colloidal particles takes place when the path of light becomes visible, Tyndall effect. When a beam of light is passed through a colloidal sol, Tyndall effect is observed. When an electrolyte NaCl is added to hydrated ferric oxide sol. Electrolyte is added to ferric oxide sol. The positively charged colloidal particles of FeOH whole thrice get coagulated by the oppositely charged Cl- ions provided by NaCl. So negatively charged ions की वजह से Fe3OH के जो particles हैं colloidal particles वो coagulate जाते हैं. Electric current is passed through a colloidal sol. Colloidal sol में जब electric current pass करेंगे क्या होगा? On passing electric current, colloidal sol moves towards the oppositely charged electrode where they lose their charge to get coagulated. इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और जो चार्ज को लूज करके कोगुलेट आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर इमल्शंस? व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स? गिव एग्जांपल ऑफ ईच टाइप. Emulsion is a colloidal system in which both the dispersed phase and dispersion medium are liquids. Dispersed phase और dispersion medium दोनों ही liquids होते हैं, उसको बोलते हैं emulsion. Example, milk consists of small drops of liquid fat dispersed in water. Types क्या होता है? Oil in water type, in which small droplets of an oil are dispersed in water. Example, milk, cod liver oil, etc. And water in oil type, in which water droplets are dispersed in an oil medium. Example, butter. मतलब दो तरह के होते हैं, एक ऑयल इन वाटर और एक वाटर इन ऑयल. और emulsion होता है लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर, colloidal solutions. Example basically milk. Next, how do emulsifiers stabilize emulsions? Name two emulsifiers. Emulsifier system को stabilize कैसे करते हैं? The role of an emulsifier is stabilizing an emulsion can be explained in two ways. It is believed that an emulsifier gets concentrated at the oil-water interface, that is the surface at which the oil and water come in contact with each other. Okay, it forms a protective layer of coating around each drop of oil and thus prevents the oil drop from coming in contact with one another. Oil drops को एक दूसरे के contact में नहीं आने देता. The oil drops remain suspended in water and not coagulate. तो ऑयल जो और वाटर जो कॉन्टैक्ट में आते हैं वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड आता है और ऑयल को ड्रॉपलेट्स को आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आने देता, तो इसलिए ऑयल रिमेन्स सस्पेंडेड इन द वाटर. दूसरा, अकॉर्डिंग टू अनदर व्यू, द रोल ऑफ एन एमल्सिफायर इज the same as that of a lubricant in a machine. Just as a lubricant reduces the friction in the various parts of the machine, an emulsifier also tries to reduce the interfacial tension between oil and water surface by suitable means. Thus, oil and water remain in company of each other and do not get separated. तो ऑयल और वाटर को आपस में कंबाइन रखने के लिए एक ऐसे लुब्रिकेंट काम करता है. इमल्सिफायर और दोनों आपस साथ में बैलेंस रहते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं. कॉमनली यूज इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन से होते हैं? सोप, डिटर्जेंट, लायोफिलिक कोलाइडल्स, प्रोटीन्स, गम्स, जेलेटिन, क्रेजन, एगर, एटसेट्रा. नेक्स्ट, एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू इमल्सिफिकेशन एंड मिसली फॉर्मेशन. कमेंट. सोप का जो एक्शन है वो इमल्सिफिकेशन और मिसली फॉर्मेशन से होता है. कमेंट करें इसके ऊपर. सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फायर फैसिएटेड and may be represented by RCO minus Na plus formula. Sodium stearate, example,
CH3CH2 whole 16 COO minus Na plus, which is a major component of many soap baths. When dissolved in water, it dissociates into RCO minus and Na plus ions. The RCO minus ions, however, consist of two parts. A long hydrocarbon chain are called non-polar tail, which is hydrophobic, water repelling in nature, and polar group CO minus, also called polar ionic head, which is hydrophilic in nature. तो सोडियम स्टीरेट जो होता है एग्जाम्पल विच इज़ अ पार्ट ऑफ मैनी सोप बाथ RCOO माइनस Na प्लस फॉर्मूला होता है सोप का जनरल. इसमें RCOO माइनस जो है वो टेल पार्ट है और Na प्लस जो है वो हेड पार्ट है. तो टेल पार्ट जो है हाइड्रोकार्बन चेन R जो है दैट इज टेल विच इज़ हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग है. और द सेम CO माइनस RCO माइनस में जो आर्क है दैट इज आयनिक, दैट इज हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग. तो एक पार्ट वाटर लविंग है, एक पार्ट वाटर रिपेलिंग है. RCO माइनस आयंस आर देयरफॉर प्रेजेंट ऑन द सरफेस विद देयर CO माइनस ग्रुप इन वाटर. सरफेस में CO माइनस आयन जो है वो अंदर की तरफ होता है. एंड द हाइड्रोकार्बन चेन्स आर staying away from it and remain in that surface. At the critical micellary concentration, the ions are pulled into the bulk. क्रिटिकल मिस्ट्री कंसनट्रेशन जो पहुंचने पर जो आयंस है वो बल्क के अंदर खिंच जाते हैं एंड एग्रीगेट टू फॉर्म स्फेरिकल शेप. और वहाँ पर जो नेगेटिव आयंस है जो वाटर लविंग पार्ट है वो कोगुलेट हो जाता है सरफेस के अंदर जाकर के. बट एट क्रिटिकल मिस्ट्री concentration, the ions are pulled into the surface, aggregate form of a sphere shape in with their hydrocarbon chain pointing towards the center of the sphere. CO minus part remaining outward. जो CO minus part है वो बाहर रहता है और अंदर की तरफ सब पूरा का पूरा कोगुलेट हो गया. एग्रीगेट दस फॉर्म इज नोन एज आयनिक मिसली. और इसको जो बनता है एग्रीगेट क्लस्टर इसको बोलते हैं आयनिक मिसली. The cleansing action of soap is due to the fact that soap molecules form micellary around oil droplets in such a way that the hydrophobic part of the stearate ions is in oil droplet and hydrophilic part projects out of the grease droplet like bristles. अब क्लीनिंग एक्शन ऐसे होता है कि एक पार्ट जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट वो अंदर रह गया और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ वो सरफेस पे वो coagulate हो गया. Since the polar groups can interact with water, the oil droplets surrounded by stearate ions now pull water and remove the dirt from the dirty surface. अब जो अंदर की तरफ क्लस्टर है वो dirty surface से कंटेक्ट करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. जो डर्ट है उसे अट्रैक्ट कर लेगा. Then soap helps in the emulsification and washing away of the oils and fats. Negatively charged teeth around the globules prevent them from coming together and forming aggregation. जो नेगेटिवली चार्ज टीथ है उसकी वजह से उसको जो डर्ट है उसको कोगुलेट होने से रोक देता है और उसको पुल कर लेता है बाहर. इस तरीके से जो डर्ट है वो निकल जाता है. यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, सरफेस है, सरफेस के अंदर क्लस्टर बनेगा और क्लस्टर बन के इस तरीके से जो नेगेटिव टेल पार्ट है वो बाहर रहेगा, बाकी अंदर का क्लस्टर हुआ डर्ट को अट्रैक्ट कर लेगा, पुल करेगा अपनी तरफ और उसको खींच के बाहर निकाल देगा. अब एग्जाम्पल क्या है, ग्रीस ऑन क्लॉथ, स्टीरेट आयंस फ्रॉम सोप अरेंजिंग अराउंड ग्रीस ड्रॉपलेट दिया हुआ. ग्रीस ऑन क्लॉथ ए पार्ट पे शुक गया, उसके बाद स्टीरेट आयंस फ्रॉम सोप एग्रीगेटिंग अरेंजिंग अराउंड द ग्रीस ड्रॉपलेट के अराउंड अरेंज करने और फिर मिसली फॉर्म हो रहा है. इस तरीके से एक्शन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस. हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के 4 एग्जांपल्स हैं. इन हेटेरोजेनियस कैटालिसिस द कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट का जो फेज है उससे अलग फेज में प्रेजेंट होता है कैटलिस्ट. और इसके एग्जांपल क्या होंगे, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 gaseous plus H2 gaseous Ni solid 200 disintegrate will form CH3 single bond CH3 gaseous. फिर next N2 gaseous plus O2 gaseous Fe solid will form 2NO3 gaseous. 2SO2 gaseous plus O2 gaseous catalyst है B2O5 solid to form 2SO3
सॉलिड। नेक्स्ट CO gaseous प्लस 2H2 gaseous, यहाँ पे कैटलिस्ट है ZNO और Cr2O3 सॉलिड टू फॉर्म CH3OH gaseous। ऑल द कैटलिस्ट आर सॉलिड फेस। कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड फेस में है और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो सब गैशियस फेस में है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट? एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी कैटलिस्ट की जो है उसका क्या मतलब है? फीचर्स क्या है कैटलिस्ट के? एक्टिविटी, द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन। इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ कीमोसॉर्प्शन टू लार्ज एक्सटेंट। केमिकल रिएक्शन को जो स्पीड है उसको एक्सेलरेट करने की जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं एक्टिविटी, जो कि केमिसॉर्प्शन पे डिपेंड करती है। द कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ अ मेटल फॉर हाइड्रोजनेशन इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम डाउन ग्रुप 5 मेटल्स टू ग्रुप 11। तो कैटलिटिक एक्टिविटी जो है मेटल की फॉर हाइड्रोजनेशन वो बढ़ती है फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11। द मैक्सिमम एक्टिविटी इज शोन बाय द मेटल्स ऑफ ग्रुप 7, 8 एंड 9। और 7, 8 और 9 ग्रुप के जो मेटल्स हैं वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, मतलब कि जो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है फॉर ग्रुप 7, 8 एंड 9 मेटल्स। फिर दैट इज सेलेक्टिविटी। क्या होता है? द सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज द एबिलिटी टू डायरेक्ट रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब कि एक जो रिएक्शन हो रहा है उसमें कैटलिस्ट का काम है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करना। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनेगा। It means substance which can act as a catalyst is one reaction may not act as a catalyst in another reaction। ताकि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में जो कैटलिस्ट काम कर रहा है वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे में भी काम करेगा। सेलेक्टिव है हाईली। एग्जाम्पल, we get different products when we use the different catalysts in the same reaction between H2 and CO। मतलब CO और H2 का रिएक्शन में अलग अलग कैटलिस्ट यूज़ करने पे प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग मिलते हैं। जैसे CO gaseous प्लस 3H2 gaseous, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ किया PT तो क्या बना CH4 gaseous प्लस H2 gaseous। CO gaseous प्लस 2H2 gaseous, यहाँ पे यूज़ किया Cu ZNO Cr2O3 तो क्या बना CH3OH gaseous। फिर से CO gaseous प्लस H2 gaseous पे यूज़ किया कॉपर तो बना HCHO gaseous। तो 3 अलग अलग कैटलिस्ट और 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स, सबके स्पेसिफिक है जिस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द।